So good morning everyone. We will be discussing some brief points on economic survey and some basic data related. I don't want to waste time, but therefore we will continue quickly. Okay. So first is some brief points about demography of India. Okay. So we are 1/6 of the world population. At about 1.4 billion people. Okay. मीडियन एज क्या है भारत का? Median age is 28.7 years. Okay, this is for India. When you compare the same number for China, you get around 38 years. This is around. When you compare the same number for Japan, you get that around 48 years. This is something that we need to keep in mind, that the median age of Indian population is around 28-29 years, which is very good, and we will discuss that in some detail. The density of population, we shall symbolize that by rho, for 2022 is around 473. This is not as per census data. Census data reads a lesser value, but this is according to some recently published data. I'll discuss the sources. There's also a growth rate of population that we can have a look at. Growth rate is about 0.68% again for 2022. The decadal growth rate is around 16-17%, so we can very quickly estimate that 1/10 of the decadal growth rate will be the growth rate approximately in a year. Right, see, birth rate, I'm just giving you some raw data because this will help you in preparation. Birth rate is around 16.1 per thousand of population, per thousand live birth, per thousand of population. The death rate is 6.6 per thousand. Right, we can look at life expectancy. In life expectancy, females का कितना है? फीमेल्स का है 73.6 ईयर्स, भारत की बात चल रही है. और मेल्स का कितना है? मेल्स का है आपका 70.5 ईयर्स. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. वुमेन हैव larger life expectancy, and we can discuss some of the reasons. Many people suggest that men do indulge in a lot of alcohol, a lot of rash driving, a lot of behaviors that may lead to serious consequences such as smoking. The proportion of women doing that is lesser, and hence there is also an increase in life expectancy. Fertility rate, total fertility rate of India is around 2. Some states have more than 3. So we can have infant mortality rate. That's about 30 per thousand live births. So we can keep that in mind, that infant mortality rate is around 30 per thousand live births. Okay? These are some aspects. We need to focus mostly on what is the population of India, what is the median age, very important. Again, what is the density of population, growth rate, life expectancy is very important. Birth rate, death rate can be neglected. Infant mortality rate we will discuss again, because economic survey has dedicated chapters discussing these things. Infant mortality rate, maternal mortality ratio, and we will discuss them down the way. Age structure is very important. And again, this is important because economic survey this year talks a lot about care economy. So we need to have an estimate about what is the age structure. So population between 0 to 14 years. This is as per 2021 data. This is data cited from UN Population Fund and another similar resources. It is 25.68%. You can read the approximate value as 25%. Alright. 15 to 64 years. The actual data is 67.49 years. You should read it as 67% only. Take the lower bound always, it helps. More than 65 years, it's 6.83%. You can read it at 6 to 7%. Right.
So keep this in mind. 25%, 67%, and 6 to 7%. You don't need to remember this data as much, but you need to be thorough with this aspect, because in exams and in many other places you can easily cite this data. That's 0 to 14 years is 25%, 15 to 64 years is 67%, and again more than 65 years is 7%. So India's population is projected to peak of India's population. तो कब तक वो peak करेगा? We have an estimation at about 2060. ठीक है, and that will be at around 1.7 billion. Okay, उसके बाद decline होगा, but we will be one of the most populous countries even by the end of the century. Right, so we also had the World Population Prospectus. ये रिपोर्ट आया था अभी 2024 में यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा. ये बोलता है, थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड जो पीक रहेगा वो 50 से 60 साल में अगले पीक आएगा, एंड दैट विल बी अराउंड 10.3 बिलियन. द पीक ऑफ पॉपुलेशन विल बी अराउंड 10.3 बिलियन इन अबाउट 2080s. इस समय पीक आएगा. ये वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात चल रही है, और वो कुछ इतना रहेगा. 2024 में कितना है? 2024 में जो डेटा है वो 8.4 बिलियन का है. ठीक है, बाकी एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह में कर सकते हैं कि 55% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बिलो 30 ईयर्स इन छत्तीसगढ़. ये क्या है? पॉपुलेशन बिलो 30 ईयर्स. ये इम्पॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 55% आबादी लेस देन 30 ईयर्स है. 52.8% ऑफ पॉपुलेशन इज़ लेस देन 30 ईयर्स इन हरियाणा, and 60% approximately is less than 30 years in UP. I'll write this again in a more readable manner. The population less than 30 years of age in states. तुम बात करते हो छत्तीसगढ़ में, तो अप्रॉक्सीमेटली 55% आबादी ऐसी है जो कि 30 साल से कम है. तुम बात करते हो हरियाणा की, तो उसमें लगभग ठीक है, तुम बात करते हो हरियाणा की, तो हरियाणा में लगभग 52% पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 30 ईयर्स है. और तुम बात करते हो अगर यूपी की, तो यूपी में 60% पॉपुलेशन लेस देन 30 ईयर्स है. सो वी जस्ट नीड टू लुक एट इट. मैंने इस पर कुछ और डेटा भी निकाला है रिगार्डिंग दी. इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था जो कि कवर कर रहा था कि हमारे एमपीज़ का क्या एज स्ट्रक्चर है. आई हैव दैट, बट राइट नाउ वांट टू फोकस मोर ऑन द इकोनॉमिक साइड ऑफ थिंग्स. इसलिए मैं बस ब्रीफ दे रहा हूँ कि वर्ल्ड का 1/6 पॉपुलेशन है एट अराउंड 1.4 बिलियन. मीडियन एज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ हैव अ कंसिडरेशन. डेंसिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंट डेटा है. ग्रोथ रेट बर्थ रेट इंपॉर्टेंट नहीं, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं का 73 ईयर्स है, मेल्स का 70 ईयर्स है. टोटल फर्टिलिटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिहार और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इट इज़ मोर देन 3, तो वी नीड टू कंसिडर दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो. एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल को हम लोग केयर इकोनॉमी पढ़ेंगे. तो केयर इकोनॉमी में हम लोग को समझना है कि अगर आप करेंट स्टेटस देखिए तो 25 + 6 पकड़ते हैं, 31 to 32% जो है हमारा केयर इकोनॉमी में जा रहा है. मोर देन दैट भी एक्चुअली केयर इकोनॉमी हम लोग मोर देन 60 ईयर्स में ही देखने लगते हैं. तो पर अभी आप समझिए कि एटलीस्ट मोर देन 30-35% तो हमारा डेफिनेटली ऐसे पॉपुलेशन है जो कि इमीडिएट नीड है केयर के. पर एक्चुअली जो केयर इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं फ्रॉम मोर देन 60 ईयर्स को हम लोग देखते हैं, एंड अडल्सेंट को भी हम लोग देखते हैं, तो लेस देन 19 ईयर्स के. तो उसका डेटा थोड़ा अलग है, वी विल हैव अ लुक एट इट लेटर. ठीक है, बाकी आप देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन लेस देन 30 ईयर्स है. ठीक है, सो वी विल जंप नाउ टू द चैप्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उस पर कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं. और ये थोड़ा कस्टमाइज है, ये मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, इस बार मैं मेंस लिख रहा था, तो इसलिए अब मैं बस रिव्यू कर रहा हूँ. इससे मेरा भी थोड़ा रिविजन हो जाएगा, एंड आई मे हेल्प सम पीपल ऑल्सो हु वांट्स अ क्विक रिव्यू. तो इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत सही बात बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी क्रूशियल लिंक बिटवीन ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, क्या होता है ना कि ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की हम लोग बात करें तो जो लिंक है वो है एम्प्लॉयमेंट.
क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह का लाइफ रहेगा। एक शब्द यूज़ किया गया, फ्रेज यूज़ किया गया है, फॉस्टर एम्प्लॉयमेंट। फॉस्टर एम्प्लॉयमेंट से क्या मतलब है? वो कहते हैं टू ऑयल द इंजन ऑफ डिमांड लेड ग्रोथ। ठीक है, वो कहते हैं टू ऑयल द इंजन ऑफ डिमांड लेड ग्रोथ। ठीक है, दिस समथिंग गुड फ्रेज दैट यू कैन यूज। और बेसिकली उनका क्या है ना, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में एक गैप आ जा रहा है। ये जो गैप है ये आपका फिल होगा बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑल्सो ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस तरह का चीज़ें हम लोग को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में हम लोग इस तरह की चीज़ें रखते हैं तो थोड़ा अच्छा बना जाता है। ठीक है, बाकी ये सब तो आप देख ही रहे हैं। बाकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे ब्रीफली बोला है अपने इंट्रोडक्शन में एम्प्लॉयमेंट में, तो मैं उसको पॉइंट फॉर्म में थोड़ा बता रहा हूँ कि ये किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो पाएगा। तो सबसे प्रथम चीज़ क्या है कि हम लोग को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, राइट। हम लोग को फोकस करना चाहिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमें फोकस करना चाहिए स्किलिंग पे। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है जो कि आर्ग्यू करता है कि मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयबल नहीं है। दे मे बी ग्रेजुएट्स बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। सो वी नीड टू कंसिडर दैट स्किल एंड एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। गवर्नमेंट इज फोकसिंग अ लॉट ऑन इट। सो एम्प्लॉयमेंट हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट्स है, मेजर ब्रॉडर थिंग्स देख रहे हैं कि वी शुड फोकस मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल साइड पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा सो वी क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होना चाहिए। लेबर कोड्स, इस बार सिविल सर्विसेज में आया भी था सवाल लेबर कोड्स के बारे में, बिकॉज दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म in the market. We can have a rigorous debate whether it is good, wrong, whether it has some drawbacks or whether it has some benefits, but that's for the later time. Right now we need to consider that it was an important reform by the government which was duly pending for many years, right? Then there is also workplace. This is very important, especially for our women. So when we look at women related aspects, this will be the symbol for women because this is the symbol for women. So we need to realize that workplace work culture, वर्क प्लेस आपका कैसा है। क्या वहाँ पे क्रिश फैसिलिटीज़ हैं, क्या वहाँ पे बेटर एम्प्लॉय कल्चर है, स्पेशली गुड ट्रीटमेंट है आपके साथ। ऐसा नहीं है कि हमारे वुमेन के साथ डेरोगेटरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट। सेफ्टी एस्पेक्ट्स, RJ कार इंसिडेंट इज़ अ शॉक टू द इंटायर कंट्री, and therefore we should focus on these aspects, that many people are saying that why is it that such prominent institutions and even in corporate sector we must have a very ethical work culture. We must have a work culture that is based on compassion, that is based on values, that is based on respect for the dignity of women. It is also a fundamental duty, under Article 51A Part 4A of the Constitution. So we must keep these things in mind, that this is the need of the hour. Okay, that our work, and not only for women, even for men. Recently an EY employee committed suicide. Many of you may be reading the newspapers and may be aware of it also, and it is so sad that the work culture of such corporates has become so tedious that people have to end their lives. And of course it's not a question of money, they may be getting a lot of it, but then has to be a very efficient work life balance. So we need to consider these things, that the work culture should not be too much. And of course there is very important social security. Please, I mean, India, we all have been discussing that less than 4% we do have this thing called insurance penetration. So less than 4% or insurance premium, I'll have to cross check my data. I think the insurance premium is less than 4% of GDP. So we need to consider these things. Though I may be making some errors, I'll cross check it, but mostly it is this number only. तो इंश्योरेंस हो गया, अदर वेज है सोशल सिक्योरिटी के, वी नीड टू रियली फोकस ऑन दैट,
because life is uncertain and therefore we need very good and efficient social security. It will save us from many disasters, especially for the people who are not earning in a very high margin. For them this becomes even more important. There's health insurance, there are other formats also. Okay, so now we need to consider this, that India's workforce, this is around 56.5 crore. You need to remember, I'll also write the approximate data because approximate data is what we can remember. So this is as per economic survey, the very recent one. I don't know, I think the recent one was 23-24, right? So we need to consider that, and of this 45% is in agriculture. Of this 28%, actual number is 28.9%, but I'm not writing the exact numbers because it will be difficult for you also to remember that. So 13% is, this number is important, is in construction. And economic survey deals a little more into construction, especially with respect to digitization of this sector. It has really good arguments in its favor, digitization of construction sector. Many of us may not have given a thought to it, but it is really important, right? So 11.4%, again I should not be writing the decimal digits, but it's all right, is in manufacturing. At least this data we should remember. And this breakup is not strictly as per the primary, secondary, tertiary sector. They have given as per some major important segments. So like agricultural sector has around 45%, service sector 28%, construction has around 13%, manufacturing has around 11%. Within the service sector also there's a little breakup given, such as hotel, trade, hotels, right, restaurants. These kind of sectors, they occupy 12% of the workforce. So they have given a little more breakup. They have said that transport, storage and communication, that caters around 5.4% of the workforce. Other services at around 11.4%. If you add them up, you are looking at 23 plus 5, 28%. So that's kind of the breakup of this service sector, 28% wala. The trade, hotels is around 12%, transport, storage around 5%. On other services, this is other, is around 11%. So you can either, if there is a question of manufacturing, you can either give this breakup. If there is not, you can just briefly write that service sector is acquiring around 28%, construction is at around 13%, and manufacturing is at around 11%. So we can keep that in mind. Now there is a definition that may help us in prelims. So I'm just writing, just citing it. It was given in the footer, I think, in the footnote. So for a person to be categorized as employed as per usual status. So for a person to be categorized as employed as per usual status, principal status plus secondary status, I think we call that PP plus SS or PS plus SS. So this is something that he must have pursued an economic activity. She or he must have pursued an economic activity for at least 30 days. For at least 30 days during 365 days. राइट, सो ये आपको समझना, जब बात होती है ना यूजुअल स्टेटस की, तो हम लोग बात करते हैं कि शी और ही मस्ट हैव परस्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 30 days ड्यूरिंग द लास्ट 365 days of the survey. So we may keep that in mind. And again, there's something called current weekly status. This tracks the data for the last 7 days. तो ये बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं ना कि यूजुअल स्टेटस में क्लासिफाई करते हैं हम लोग, कभी कभी प्रिंसिपल स्टेटस में, यूजुअल स्टेटस में क्लासिफाई करते हैं, कभी कभी करंट वीकली स्टेटस. तो ये 7 दिन का रहता है और इसमें नंबर ऑफ आवर्स गिनते हैं, और ये हमारा रहता है 365 दिन में से 30 दिन का रहता है. इकोनॉमिक सर्वे का भी डेटा है, PLFS का भी डेटा है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग ग्रेजुअली. ठीक है. अगर आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो हम लोग एक मिनट, हाँ,
तो उसमें भी हम लोगों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो कॉन्स्टेंटली इंडिकेट कर रहा है कि आर लेबर फोर्स इज़ परफॉर्मिंग बेटर। वुमेन का लेबर फोर्स भी इंक्रीज हुआ, वी आर 37% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, विच इज़ अ वेरी good number. We can write this, in fact many would be writing this. There's a breakup of employment as far as the category is concerned. One was according to sector, the other is also important, like number of people engaged in self-employment. So how many people are engaged in self-employment? Around, again I'm writing the approximate number, so 57%. Right, unpaid workers. Even the last year's economic survey had a very dedicated note on the issue of unpaid women work in the country. In household, this is household enterprises. So unpaid workers in household enterprises, that's around 18%. It could be women or men. This is important, casual labor. So we have the data at around 21%. It's actually 21.8%, but again it's hard to remember that. Regular wage labor or salaried class, this is around 21%. Actually it's 20.9%, but 20%. Okay, so keep that in mind. Self-employment is at 57%. Casual labor, very important, 21%. Regular wage, that is salaried labor, is around 20%. So 57, 21, 20, and again 18% is unpaid workers. ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या है भाई. अब ये कुछ और है, तो they have given a breakup of rural and urban, but I won't go into that. Okay, India's demographic dividend. तो इकोनॉमिक सर्वे एक बात बोलता है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि we need to look beyond just demographic dividend. It has to be combined with the gender dividend. So this is very important, that of course there is on the agenda demographic dividend, but it has to be coupled with the aspect of gender dividend. Only then can we be able to significantly capitalize our potential. And the both are very important. India is looking ahead. We are entering the Amrit Kal. So yes, there is a lot of scope there. Again, this important facts on youth unemployment. So youth unemployment, if you look at it, there's a data available for 2017, 18, and again 2022, 23. तो 17-18 में इकोनॉमिक सर्वे PLFS का डेटा साइट करते हुए कहता है कि यहाँ पे 17.8% था, आप 17% ही याद रखिएगा, और यहाँ पे 10% ही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम अर्स्टवाइल 17% टू करेंट 10%. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन स्पेसिफिकली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Again, this is the symbol for women. This is equal to 37, but we can break that up for rural and urban. So rural women के लिए कितना है ये 41.5 है, urban women के लिए कितना है ये 25.4 है. आपको ऐसा दिखना है कि 37 टूटेगा 41 में और 25 में. ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. महिलाओं का है ये रूरल है, ये अर्बन है. ठीक है, अभी तक क्या देखें, एक बार फटाफट चेक कर रहे हैं हम लोग. ये तो हो ही गया था. यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें बीच का जो गैप है उसको फिल करने के लिए हमें बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए. फॉस्टर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है भाई, टू ऑयल द इंजन ऑफ डिमांड लेड ग्रोथ. एम्प्लॉयमेंट को हम लोग देख रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे हम लोग कि जब भी आए तो ये 4-5 एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए. टेक्नोलॉजी, आप इसको एक्सपैंड कीजिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और उसको हम लोग को कैपिटलाइज करना है. नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लॉज में रेगुलेशंस में रिफॉर्म्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल होने चाहिए. पीएम गति शक्ति है, बहुत सारे आ रहे हैं. लॉजिस्टिक पॉलिसी आया है. स्किल एंड एजुकेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 52% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स, 52% of India's graduates are unemployable, so that's very sad.
Then there is work culture and work environment related things. So we seriously need to focus on the safety aspects of the employees, the way they are being treated. EY case is very sad that a very I think if my memory is right that the girl was a chartered accountant. If not, I'm not sure, but she was working in E&Y at a very dignified position. E&Y is a very reputed big four company and they pay huge salaries to its people. But look at the work culture. People have to commit suicide due to that. So it's very sad. Again, we have to remember social security, very important. वर्कफोर्स को ब्रेकअप 56 करोड़ है. 56 करोड़ का ब्रेकअप है कि 45% एग्रीकल्चर में, 28% सर्विस में, कंस्ट्रक्शन में 13% है, 11% मैन्युफैक्चरिंग में है. ट्रेड होटल ये सर्विस का ब्रेकअप है. ट्रेड होटल वगैरह में 12% है, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज में 5% है, अगर अदर 11% है. जो सम कॉन्सेप्ट एज टू व्हाट इज़ यूजुअल स्टेटस, व्हाट इज़ करंट वीकली स्टेटस. तो आपको बस वो थोड़ा बेसिक याद रखना है कि इसमें हम लोग पिछले 7 दिन का देख रहे हैं, इसमें हम लोग पिछले 365 दिन का देख रहे हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगभग 57% है, अनपेड वर्कर्स 18% है, कैजुअल लेबर्स 21% है, रेगुलर वेज 20% है. डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ भी आपको फोकस ना ऑन जेंडर डिविडेंड. सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड पे हमें फोकस नहीं करना है क्योंकि हम लोग अमृतकाल में एंटर कर रहे हैं. राइट. यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखना है. PLFS कह रहा है, अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है. PLFS का डेटा कुछ भी दिमाग कहे वो सही होता है. ठीक है कि 17% से 10% आया है. वी विल रिमेंबर दैट. Okay, female labor force participation. There's some criticism, of course, on data, but we have to not go into these intricacies कि डेटा बहुत गलत है, ये है, फलाना ठिमकाना है. जो लिखा चुका है वही सत्य है. ठीक है. जैसे कुछ लोग इस पर भी आर्ग्यू करते हैं, 37% में से कुछ 17-18% ऐसे हैं जो कि अनपेड वाले हैं. पर हमें उन मुद्दों पे ध्यान नहीं देना है. हमें यहाँ पे फोकस करना है कि क्या बेसिक डेटा हमें मिल रहा है और उसको हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Because it's better to right now focus on clearing the exam than on very strict notions of whether ये सही है या गलत है. उसका समय मिलेगा. When we become officials, we may get an opportunity to think on these things. Right now we need to focus on clearing the exam. Yes, we should understand the concepts. Yes, we can give a thought about it. But we need not question every data that is available to us. I see some people getting into that and wasting a lot of time. ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट के बारे में काफ़ी अच्छा एनालिसिस दिया था इकोनॉमिक सर्वे ने, तो वो हम लोग देख लेते हैं. जैसे ये कह रहा है ना कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज दैट आर और परसेंटेज ऑफ फैक्ट्रीज दैट आर एम्प्लॉइंग लेस देन 100 पीपल. ये काफ़ी खूबसूरत बात था कि फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग लेस देन 100 पीपल, ये कितने हो सकते हैं. आपको पता चलेगा कि ये लगभग 80% है. एक्चुअल नंबर है 79.2, तो मतलब अराउंड 79% या फिर 80% ऑफ ऑल फैक्ट्रीज ऐसे हैं जो कि लेस देन 100 पीपल को एम्प्लॉय कर रहे हैं. तो ये समझना है. आई वाज नॉट अवेयर व्हेन आई रेड दिस एंड I felt happy because of the concept and sad also because this is not very good. और ये समझना है कि this comprises of 22% of all persons employed and 20.9% of workers. तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है कि परसेंटेज ऑफ फैक्ट्रीज दैट आर एम्प्लॉइंग लेस देन 100 पीपल कितना है यार, 79% है. उसमें भी 22% जो है वो पर्सनस एम्प्लॉयड हैं और 22% ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ये 100 इन दी फैक्ट्री सेक्टर. ऑफ ये फैक्ट्री सेक्टर नहीं, इन द टोटल वर्कफोर्स जो है ये हमारे जो है ये फैक्ट्रीज कर रहे हैं जो कि लेस देन 100% एम्प्लॉय कर रहे हैं और 20% ऑफ वर्कर्स हैं. ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. आई मे मेक सम मिस्टेक्स सो आई विल ग्रेजुअली इम्प्रूव. ओके, ये जस्ट अ ट्रायल. मेरा अभी जस्ट एक मेंस दिया था एंड आई वांटेड टू जस्ट डिस्कस सर्टेन थिंग्स, सो आई एम राइटिंग दिस. बाकी देखते हैं फैक्ट्रीज पर. ये डेटा सही है भाई. फैक्ट्रीज दैट आर एम्प्लॉइंग मोर देन 100 वर्कर्स. ठीक है, दिस कैन बी ए सिंबल. इसमें आपको बहुत, जैसे हम लोग देख रहे हैं वो अराउंड 20% के आसपास ही होगा बिकॉज दैट इज़ द कैटेगराइजेशन. और इसमें काफ़ी ग्रोथ है. पर इसमें इकोनॉमिक सर्वे क्या कर रहा है ना, इसमें ग्रोथ बहुत तगड़ा है. वो बोल रहा है कि इसमें जो डेल्टा स्टैंड्स फॉर ग्रोथ,
पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ग्रोथ है, 11.8% है। आप इसको याद रखिए, डेल्टा इक्वल टू प्लस 11%, ठीक है। मतलब कि फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 100% में 18% का ग्रोथ हो रहा है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो वो लोग ये आर्ग्यू करें, देयर इज अ सिग्निफिकेंट नीड टू स्केल अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। There's a very significant need to scale up the manufacturing units, ठीक है। और ऐसा कहीं ना कहीं आप MSMEs के बारे में पढ़ते होंगे कि वहाँ पे भी डॉर्फिंग ऑफ MSMEs करके एक बहुत सीरियस इशू है। सो वी नीड टू रियलाइज दीज थिंग्स दैट scaling up is the thing. There's another beautiful fact that they have plotted also, that wager to worker ratio or wage to worker ratio tends to rise with the employment size of the factories. Really good, right? कि आप देख रहे हैं कि वेज टू वर्कर रेशियो कि एक वर्कर को कितना वेज मिल रहा है, ये बढ़ रहा है, ये ग्रेजुअली धीमे 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 बढ़ रहा है एज यू इंक्रीज द फैक्ट्री साइज। इनफैक्ट एक ग्राफ भी है, मैं तो रफ ही ड्रॉ कर पाऊँगा कि ये यहाँ पे वर्कर टू, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर। एक्चुअली तो मैं ये ऐसा ड्रॉ करना चाहता था थोड़ा सही ढंग से। ये यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट साइज और यहाँ पे है वेजेस पर वर्कर। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट साइज, तो ये बोलता है कि ये पॉइंट है 1400 रुपया अगर फैक्ट्रीज जो है वो 1.25 लाख के एम्प्लॉयमेंट में हैं। ये कुछ उनका डिफरेंट मेट्रिक्स पे ये लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, पर हमें ग्राफ के नेचर को समझना है मोर देन द डेटा। ये ग्राफ एज इट इज़ आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे में सेम डेटा के साथ। 5000 हो जाता है वेजेस पर वर्कर अगर हमारे फैक्ट्रीज जो है वो 2.5 लाख तक जा रहे हैं। सो द मोमेंट यू इंक्रीज दिस थिंग, दिस अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी wages per worker also. This is very important a graph. You can use this other places also. ठीक है, बाकी तो यार there's some change of data. I think this number would be a little wrong, so I will correct it and then I'll let you know. यहाँ पे एक जगह पे 12% लिखा है, so I may have to rethink about it. But rest is correct. This all is correct, that we need to scale up the employment. There's something very important about employment as per some manufacturing sectors. ये बहुत सही पॉइंट है, आप पढ़े भी होंगे कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इन दी ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विथ 11%। तो 11% का एम्प्लॉयमेंट इसके पास है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एट 11%, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको टेक्सटाइल्स आएगा, इसमें नंबर इज़ अराउंड 10%। उसके बाद आप देखिएगा तो आपको प्राइमरी मेटल्स आएगा, ये प्राइमरी हम लोग 1 डिग्री लिख देंगे। व्हाट एम आई राइटिंग, दिस इज मेटल्स, इसमें आपको 7% आएगा। उसके बाद वेयरिंग्स हैं, एपरल हैं, ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, दो देयर इज़ लेस चांस, बट आपको ये समझना है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कभी भी आए आपको एक पॉइंट लिखना है यार कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। 11% जा रहा है यार एम्प्लॉयमेंट। टेक्सटाइल उसके बाद है, मेटल्स उसके बाद है, प्राइमरी मेटल्स, वेयरिंग, एपरल्स, ये सब उसके भी बाद हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझना है। मैं सारे एकदम बारीकी नहीं बता रहा हूँ, पर मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं कुछ और मेरे नोट्स में भी है कि ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखिएगा तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 66% का आया है, रबर और प्लास्टिक सेक्टर में 24% का आया। बट नॉट एवरी डेटा इज़ वर्थ रिमेंबरिंग, नॉट एवरी डेटा वी कैन रिमेंबर। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में। दिस इज़ नॉट रिगरस, दिस इज़ वेरी ब्रीफ, क्योंकि उसमें दिया हुआ था ऐसा, तो मैंने नोट किया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू क्या हो रहा है या फिर क्या किया जाए। तो कुछ जैसे वो लोग बोलते हैं कि उनका PLI स्कीम बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छा है, इससे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वो लोग बात कर रहा है कि
प्राइवेट सेक्टर को केपेक्स बढ़ाना है। तीसरा वो लोग कह रहे हैं कि वर्कर वेलफेयर, ये हम लोग ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, लार्जर एम्बिट कि यार वर्क कल्चर बढ़े, अच्छा से बढ़े, सेफ्टी नेट हो और वर्क लाइफ बैलेंस पे भी फोकस किया जाए। तो वर्कर वेलफेयर हमारे खैर डीपीएसपी में भी आर्टिकल 43 में है, आर्टिकल 42 में है कि हम लोग डील करते हैं वर्कर्स के वेलफेयर को लेकर के। तो वी हैव टू बी केयरफुल। इवन डीपीएसपी टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स। तो स्टेट में मेक रेगुलेशन एटलीस्ट फॉर स्टेट लेड इंडस्ट्री, स्टेट लेड यूनिट्स। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा हम लोग को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रूव करना है। द प्राइम मिनिस्टर, द इंटायर गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश किया है। लखपति दीदी स्कीम, एटलीस्ट लो एंड पे लखपति दीदी स्कीम इज़ वेरी प्रोमिनेंट। देयर आर अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट रन्स एंड इन फैक्ट इवन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज इला भट्ट का सेवा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रोमिनेंट है। इस इकोनॉमिक सर्वे ने भी उसको साइट किया है। इला भट्ट का डेथ आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था। तो शी वॉज अ वेरी रिमार्केबल वुमेन एंड एथिक्स के पेपर में, एसए के पेपर में भी आप उनको कोट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन करके है इनका, एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगेन लखपति दीदी भी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत फ्लैगशिप स्कीम है। बाकी भी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वगैरह जहाँ पे ये कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए हमारे पास होना चाहिए इजी एक्सेस टू क्रेडिट। ये सब कुछ ब्रीफ पॉइंट्स होने चाहिए जो हम लोग को पता होने चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो ठीक है, हम लोग को देना है, पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रेडिट ईजिली होना चाहिए। ये लिंकेजेस हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स पे भी बात की जा सकती है, जैसे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ बहुत अच्छी स्कीम, जैसे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है। यहाँ पे 2015 में ऑफकोर्स ये लॉन्च हुआ था और यहाँ पे जॉब फेयर्स होते हैं, काफ़ी सारा करियर डिस्कशंस होता है। ई श्रम पोर्टल है। ये सब कुछ याद रखिए क्योंकि ये सब आप स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने आंसर में, तो अच्छा रहता है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, इसे करते हैं कि दे से दिस इज़ द फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग दिस इशू ऑफ unorganized workers and how to get them into the formal sector, how can we provide them with better social security. There are other issues with unorganized sectors, that many of it goes unregulated, many of it may not have actual, like बहुत सारे ऐसे आपने पढ़ा होगा कि वेस्ट क्लीनिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ई वेस्ट इंडस्ट्री, ये मैं थोड़ा साइड लाइन में आपको बता रहा हूँ, कभी होगा तो उस पर और चर्चा करेंगे। ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के साथ क्या इशू है? अभी तो गवर्नमेंट ने ई वेस्ट रूल्स भी लेते आए हैं, बहुत सारे रूल्स हैं और उसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का बात भी किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ। आप सब लोगों ने ऑफकोर्स इसके बारे में पढ़ा भी होगा। पर एक जो बहुत बड़ा इशू आया था ना, द हिंदू में, इसमें काफ़ी होलिस्टिक एक आर्ग्यूमेंट दिया गया था उस न्यूज़पेपर में। उन्होंने क्या कहा था कि भाई मुद्दे की बात ये है कि मोर देन 90% ऑफ दिस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इज़ डन बाय इनफॉर्मल सेक्टर। आप समझिए इतना हाई अमाउंट है इनफॉर्मल सेक्टर का इस इंडस्ट्री में, और उस इंडस्ट्री को आपने डायरेक्टली फॉर्मलाइज कर दिया, तो वहाँ पे थोड़े से हर्डल्स आएंगे, बिकॉज जो रेगुलेशन है दैट डिमांड रिगरस रजिस्ट्रेशन, रिगरस उनका सारा डिटेल्स होने चाहिए सीपीसीबी के पोर्टल में। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा ई वेस्ट, और उसको ज़रूरत क्या है, वाई वी नीड इट, बिकॉज ई वेस्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वर्कर्स के पास अगर प्रॉपर गेयर नहीं रहेगा तो उनके हेल्थ को बहुत डिलीटीरियस इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए वी हैव अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, जहाँ पे एक तरफ तो अगर आप फॉर्मलाइज करते हैं तो देयर इज़ अ वेरी बिग इशू बिकॉज लार्ज सेक्शन ऑफ इट इज़ इनफॉर्मल, पर अगर आप नहीं करते हैं फॉर्मलाइज तो उनके हेल्थ को भी इशू है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, अगेन वी कैन डिस्कस समडे, बट ये हमें समझना है कि ई श्रम पोर्टल कैन बी अ गेम चेंजर बिकॉज वी आर, और ऐसा ही कुछ वो लोग एमएसएमईज के साथ भी कर रहे हैं। उद्यम पोर्टल आया है,
ई रजिस्टर उसमें होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स गवर्नमेंट ला रहा है। नॉट हियर टू डिस्कस ऑल पोर्टल, बट आई एम हियर टू हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट वंस। कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात चल रही, ऑफ कोर्स यू कैन राइट मेनी मोर पॉइंट्स, यू कैन हैव बेटर पॉइंट्स, बट ये मैं कुछ स्पेसिफिक, अगर मुझे भी आंसर लिखना रहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, तो मैं अपने पॉइंट्स के फ्रेमिंग को दूसरे ऑर्डर में लिखता, बट दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन एंड द टॉपिक इज़ मोस्टली टू इकोनॉमिक सर्वे। तो ये हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ये आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी ज़्यादा आप रिलेट कर सकते हैं, इसलिए PLI बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रहा है थ्रू प्राइवेट सेक्टर, इवन थ्रू पब्लिक सेक्टर। देयर इज अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑन, जैसे आप GDP का ब्रेकअप देखते हैं तो एक होता है प्राइवेट फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा रहता है गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, तीसरा इन्वेस्टमेंट रहता है। तो उसमें देखिए गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। जब कोरोना काल था तो उस समय का इकोनॉमिक सर्वे था, उसने कहा था कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था दैट हैड प्रोवाइडेड अ कुशन। इनफैक्ट दैट इकोनॉमिक सर्वे 2021 वाला वाज वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आए थे, रेगुलेटरी फोरबेरेंस पे आया था, और भी कुछ बहुत तगड़े तगड़े, वो हम लोग जब बात करते हैं कि ग्रोथ रेट डिफरेंशियल जिसकी बात करते हैं, ग्रोथ रेट डेट रेट डिफरेंशियल, कि व्हेन इज़ द ग्रोथ सस्टेनेबल, उस पर काफ़ी बात हुआ था। काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी पे बात हुआ था कि हम लोग को जब जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉलिसी होना चाहिए वो काउंटर सिक्लिकल होना चाहिए। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट बिकॉज दैट इफ़ यू आर वांटिंग टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स वेरी गुड इन फॉर GS3, यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ दीज थिंग्स कि काउंटर सिक्लिकल ग्रोथ पॉलिसी क्या होता है, कि गवर्नमेंट तब इन्वेस्ट करेगा व्हेन देयर इज़ अ बस्ट इन द इकोनॉमी, और प्राइवेट सेक्टर तब इन्वेस्ट करेगा व्हेन देयर इज़ अ बूम। तो जब बूम है तब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, और जब बस्ट चल रहा है तब यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। सो दिस विल बी काउंटर साइक्लिकल। आई मे यूज अ डिफरेंट कलर सिंस वी हैव सम मोर। दिस विल बी लाइक अ काउंटर साइक्लिकल, ताकि वो बैलेंस आउट हो सके इकोनॉमी। और अब आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे थे कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट नीड फॉर काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी वे वी कैन, रादर देन कि हम लोग तब इन्वेस्ट करें जब बूम चल रहा है इकोनॉमी में, तो वो हमें बहुत बेनिफिट नहीं देगा, हमें तब इन्वेस्ट करना है। और एक प्रीलिम्स 2021 में शायद से एक क्वेश्चन भी आया था कि राजा महाराजा लोग जब तब क्यों बिल्डिंगें बनवाते थे, महल बनवाते थे, जब थोड़े अकाल पड़ रहा है या फिर रिसोर्सेज डिक्लाइन हो रहे हैं उनके किंगडम्स के। तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज रहते हैं, कोई भी राजा महाराजा रहे वो उससे उस इकॉनमी को रिवाइव कर सकता है। ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ था 1929 में, तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कहा था, सिमिलर काम किया गया था कि आप काम कीजिए। तो वो सब फेजेस थे जहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफीन किया था, एंड दैट लेड जॉन मेनियार्ड कीन्स टू से एंड आर्ग्यू वेरी होलिस्टिकली that government needs to be in the business for some extent. Government needs to interfere in the market to a large extent. It need not be in the form of interfering in the negative sense, but it needs to be interfering in the enabling sense. Or that is what even our government, led by the National Democratic Alliance, is claiming, that we need maximum maximum governance and minimum government. So I do get a little slippery there. तो ये चीज़ें हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स वी हैव, हाउ मेनी मिनट्स वी हैव फोकस्ड। आई वांट टू कीप द वीडियो शॉर्ट, सो देयर आर अदर, in fact this is just the tip, so we will break it up into 2 to 3 lectures, and if you can read it once again through yourself, it will be great. So there is Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, there is pension schemes also that the government are talking about, insurance scheme also, we can discuss them. लेबर कोड्स के बारे में इसमें लिखा था, ironically GS3 में इस बार आ भी गया था। I'll just give you some brief points about what it was written there. तो लेबर कोड्स में वो कह रहे थे कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होने चाहिए गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी फंड इस्टेब्लिश किया गया है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट था, सोशल सिक्योरिटी फंड होना चाहिए। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स पे हम लोग को फोकस करना। नीति आयोग क्या कहता है कि 77 लाख का हमारे पास गिग वर्कफोर्स है, उसका एक रिपोर्ट है, आई थिंक आई मे हैव रिटन समवेयर और विल डिस्कस इट। नीति आयोग कहता है कि 77 लाख का हमारे पास गिग वर्कफोर्स है, उसमें उसको कैटेगराइज भी किया है कि मीडियम स्किल्ड कितने हैं, हाई स्किल्ड कितने हैं, लो स्किल्ड कितने हैं। तो वी विल ऑल्सो डिस्कस, वो लिखा हुआ है। और वो ये भी कहता है कि दिस नंबर इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज
एल्गोरिदम वर्क वगैरह को कुछ है उसमें, क्रिटिसिज्म वगैरह भी हम लोग देख सकते हैं और उसके पोटेंशियल भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो रहेगा ना सोशल सिक्योरिटी फंड, दिस इज गोइंग टू बी फाइनेंस फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एजेंसीज एंड दिस CSR फंडिंग। तो ये जाएगा हमारा CSR के द्वारा, ये जाएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जाएगा हमारा सेंट्रल के द्वारा, ये लोग फंडिंग देंगे ताकि इस सेक्टर को थोड़ा बेनिफिट मिल सके। और इंटर स्टेट माइग्रेंट्स का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा ठीक किया गया है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है, ये सब चीज़ें हैं। एक और एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि लेबर कोड्स जो रहेंगे ना, यू हैव टू रियलाइज ये कॉन्करेंट सक्सेस कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो पावर टू मेक रूल्स जो रहेंगे वो राज्य सरकार के भी पास रहेंगे और कुछ हद तक केंद्र सरकार के भी पास रहेंगे, पर बहुत सारे केसेस में केंद्र सरकार डेलीगेट करता है राज्य सरकार को। तो ये हमें समझना है कि ये एक एस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, जिसके बारे में हमें केयरफुल रहना है। उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया इकोनॉमिक सर्वे में, कभी और होगा तो उसको डिस्कस भी कर लेंगे। बाकी आप देखिए PM स्वनिधि स्कीम के बारे में इकोनॉमिक सर्वे कहा है। स्वनिधि स्कीम के बारे में इसमें कहा गया है, जो 2020 में आया था, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक गेम चेंजर था, जहाँ पे 10,000 का कैपिटल कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता था, एंड दिस कैन इंक्रीज ऑन टाइमली पेमेंट टू 50,000, विच इज़ ऑफ कोर्स अ ग्रेट हेल्प फॉर दीज पीपल। अगर वो लोग UPI का इस्तेमाल करें तो उनको कैशबैक भी मिल रहा था। तो वी कैन, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पर जिसको जो ये झेल रहा है, आवर इकोनॉमी इज़ इन सीरियस डायर नीड्स ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर एक्सेस टू क्रेडिट। हम लोग ने यहाँ पे भी देखा था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रथम चीज़ क्या है भाई, कि एक्सेस टू क्रेडिट होना चाहिए। अगर क्रेडिट सही नहीं आ पाएगा तो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ पोर्टेबिलिटी। और ये बोलता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड में 124 करोड़ पोर्टेबिलिटी हुआ है। आई थिंक दिस नंबर आई हैव रिटन रॉन्ग, सो देयर मस्ट बी समथिंग, आई मे हैव मेड सम मिस्टेक, आई डोंट नो हाउ हैव आई रिटन दैट, आई विल क्रॉस चेक इट एंड देन रीडिस्कस इट, इट कैन नॉट हैपन। ठीक है, बाकी देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, तो वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। फिर 2018 में हमारे से 2024 की बात करें तो 5.48 लाख कैंडिडेट्स को स्किल दिया गया है। PM मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लार्ज फ्रैक्शन ऑफ जो अवेल कर रहे हैं मुद्रा लोन्स वो वुमेन हैं। लार्ज फ्रैक्शन ऑफ लोन्स आर बीइंग अवेल्ड बाय वुमेन। स्टैंड अप इंडिया है, इसमें भी स्टैंड, अगर ये कुछ वुमेन सेक्टर से भी आप लिख सकते हैं कि स्टैंड अप इंडिया है ना भाई, स्टार्टअप इंडिया, ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे वुमेन को काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो वी हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन। इसके बाद हम यहाँ पे अभी क्लोज करेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे जॉब लैंडस्केप को, जहाँ पे फ्यूचर ऑफ, मैं बस बता दे रहा हूँ अगले लेक्चर में काफ़ी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जॉब लैंडस्केप को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का था, और यहाँ पे AI कंपैटिबिलिटी पे बात की गई है। फिर उसके बाद IMF का रिपोर्ट है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि AI कंपैटिबिलिटी वगैरह पे बात करते हैं। EP थॉमसन का, उसने काफ़ी सारे केस स्टडीज़ दिया है इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और स्पिनिंग जेनी वगैरह को लेकर के, दे हैव गिवन सम सिग्निफिकेंट आइडियाज़ दैट टू डिस्कस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बात की गई है, AI इंडिया में क्या सिस्टम है, और उसमें कुछ हिंदू का भी डेटा मेरे पास है, काफ़ी अच्छा हिंदू का एक आर्टिकल था, जहाँ पे डेटा पॉइंट का वो आर्टिकल था, वो कह रहे थे कि हमारे बहुत अच्छा चीज़ ये है कि हम लोग बहुत सारे पेटेंट्स अभी फाइल कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो वो सब चीज़ें हैं। फिर एक प्रमाण एक्सचेंज है जो कि इंटेलो लैब्स का है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर एक्सचेंज है, और ये हमारा AI बेस्ड है। देयर इज़ सिग्निफिकेंट work that they are doing, so we can discuss that again. There is some significant discussion on the गिग इकोनॉमी, जहाँ पे नीति आयोग का रिपोर्ट भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि 77 लाख है गिग इकोनॉमी में, विच इज़ 1.5% ऑफ द एग्री वर्कफोर्स एंड 2.6% नॉन एग्री वर्कफोर्स। मैं बस ब्रीफ हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको अगले हम लोग डिस्कशन में डील करेंगे। क्लाइमेट चेंज और सेवा की हमने बात की थी, तो इकोनॉमिक सर्वे सेवा के बारे में भी कहता है कि उन्होंने बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लाया है कि क्लाइमेट बेस्ड इंश्योरेंस का एक पैरामेट्रिक हीट लिंक्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कवर है, जो सेवा एज ए इंस्टीट्यूशन ने लीड किया है। वो पता नहीं कहाँ लिखा सेवा, पर सेवा कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा।
तो ठीक है, देख लेंगे जब जैसे आएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून, like, share and subscribe. This is Ashish Raj from Mangal Ashish Gurukulam. Okay, thank you.